Good morning, students. This topic is concerned with the 9th CBSE students. English. Second topic is there, that is the sound of music. So, in this lesson, we are going to study about such an inspirational girl that is name is Evelyn Glennie. She has actually she has lost her hearing power, but she became a musician. This is the journey of that girl we are going to discuss in this topic. So let me go through the textbook. See, second topic, the sound of music, 9th CBSE. Rush hour crowds jostled for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. There was a girl who was rushing to go by a train, and she was nervous, looking very nervous, because why? It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Actually, why she was nervous? Because she has got an opportunity to be a member of Academy of Music in London, Royal Academy of Music in London. But one thing is that she was profoundly deaf. एक्चुअली क्या थी, उसको सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो क्या बनना चाहती थी? म्यूजिशियन बनना चाहती थी. यानी हम कैसे कि शरीर से विकलांग नहीं होते हैं, मन से विकलांग होते हैं. वी आर नॉट डिजेबल्ड बाय फिजिकल, वी आर डिजेबल्ड बाय आवर माइंड. ये जो लड़की है एवलिन ग्लेनी, शी इज़ सच अ इंस्पिरेशनल गर्ल फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड. She was deaf, but she wanted to become the musician, and she got an opportunity to be a member of Academy of Music in London, Royal Academy of Music in London, and she was going to give the interview. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. Actually, what happened? She was just 8-year-old. At that time, she gradually started losing her hearing capacity. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie, her mother. Her mother name was Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Actually, what happened when she was 8-year-old, when she was sat beside the piano, her mother was calling her, but she couldn't approach that. So her mother thought something is wrong, something is going wrong with her, and gradually she knew that her daughter is going to lose her hearing power. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve डैमेज. उसके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उससे कहा कि उसके मम्मी और पापा को स्कूल में बुलाया और उनसे कहा कि आप लोगों को क्या करना है कि आपके बेटी को एवलिन को क्या करना है, एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है, क्योंकि सी आई थिंक सो शी इज़ गोइंग टू लूज हर हियरिंग. बट व्हाट हैपन, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप. और वहाँ पर जाने के बाद जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने रिजल्ट बताया कि सी हैज़ हर nerve system is going to be gradually damaged, and one day she will lose her hearing power. But Evelyn was not going to give up. लेकिन एवलिन जो थी वो छोड़ना नहीं चाहती थी. उसने कहा कि नहीं, it is not possible. I want to be the greatest musician of the world. And she never tried to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उसने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं वो स्कूल में ले जाऊंगी और यहाँ पर ही मैं पढ़ूंगी और कॉमन लाइफ जीऊँगी, और मुझे एक दिन म्यूजिक का क्या बनना है, एक बड़ा आदमी बनना है. यानी ऐसा जो सपना है कौन देखती है? जो कान से बहरी है, डीफ है. यानी हम लोग, हमारे पास सब चीज़ें होने के बावजूद हम हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, हमारा वैसा नहीं है. लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री कायम करते हैं.
ये लोग जो है ना, ये दुनिया में एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखते हैं। ऐसी ये एवलिन थी। उसने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट हैपन इन माई लाइफ। यस, गॉड हैज़ very what we say, God is unkind with me no matter, but I have to prove that one. I have to be the greatest musician of the world. And one day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन क्या हो गया कि उसने एक लड़की को xylophone जो रहता है वो बजाते हुए देखा और उसने कहा कि यस, दिस इज माई थिंग, दिस आई गॉट माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू बी द परफेक्ट xylophonist. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. यहाँ पे कैसा था कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, हमारे आजू बाजू वाले लोग रहते हैं, हमें क्या डिस्करेज करते हैं। वैसे उसके लाइफ में भी थे, चाहे वो दुनिया का कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी गांव हो, चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो या इंडिया में हो, ये लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं, हमारे फैमिली में रहते हैं, जो क्या करते हैं, हमेशा हमको डिस्करेज करते हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कैसे कर पाओगे, तुम्हारे पास तो कान ही नहीं है, तुम सुन ही नहीं पाओगे तो तुम xylophone बजाओगे कैसे। और ये उसको डिस्करेज करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन हर एक के जीवन में कोई तो भी एक ऐसा गुरु रहता है। रॉन फोर्ब्स नाम का जो आदमी था, उसने उसका जो म्यूजिशियन था, उसने उसका पोटेंशियल देखा। ही बिगैन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. डोंट लिसन थ्रू योर ears, he would say. Try to sense it some other way. Says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. उसने क्या कहा कि ड्रम का जो बड़ा साउंड उसके सामने किया गया, लेकिन वो उसको सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो क्या थी, डेफ थी। डेफ होने की वजह से, बहरी होने की वजह से उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जो रॉन फोर्ब्स थे, उसने कहा कि तुम कान से सुनने की कोशिश मत करो, कहीं और से सुनने की कोशिश करो, तुम आंखें बंद करो और कुछ और जो चीज़ें हैं उससे सुनने की कोशिश करो। तो उसने कहा, उसको एवलिन को रियलाइज़ हुआ कि उसके जो वेस्ट है, कमर के ऊपर के जो ऊपर का जो भाग है, वहाँ पर उसको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देता है, नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे आवाज़ कम सुनाई देता है। तो उसने कहा कि दिस इज़ द थिंग आई हैव टू गेन एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. Actually what happened? उसको ऐसा पता चला कि मुझे कान से नहीं, लेकिन मेरी जो हड्डी है, मेरी बोन्स है, अभी साइंस ने प्रूव भी किया है कि बोन्स से भी हम सुनते हैं, तो हड्डियों से हमें आवाज़ सुनाई देती है। और उसने क्या किया कि उसको ही अपना वे बनाया, उसका डिटर्मिनेशन और उसका एगरनेस, उसका कॉन्फिडेंस, उसका विल पावर, उसको किस भी चीज़ को कंप्लीट करने से कोई रोक नहीं सकता है. She never looked back. From that point onwards, she toured United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसके बाद उसने क्या किया कि उसको रुका ही नहीं, Nobody can stop her, और उसने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं. यूनाइटेड किंगडम की एक यूथ ऑर्केस्ट्रा था, उसका एक मेंबर बनी. एट दैट टाइम शी वॉज 16 years old. और उसने अभी सोचा कि म्यूजिक ही मेरा क्या होगा, लाइफ होगा. जैसे कि लता मंगेशकर ने कहा कि आवाज़ ही मेरी जीवन है, आवाज़ ही मेरी पहचान है, वैसा उसने किया. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. और 3 साल में उसने क्या किया कि बहुत सारा कुछ एक्वायर कर लिया. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. उसने कहा, उसने दुनिया के सामने एक ऐसा इतिहास रचा, एक इतिहास कायम किया. जो कैसा है कि इंटेलिजेंट पीपल ग्रूमिंग द हिस्ट्री एंड मैड पीपल क्रिएट द हिस्ट्री. जो होशियार जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, और जो पागल लोग हैं क्या करते हैं, इतिहास को रचते हैं, उसको बनाते हैं. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी पर्सनिस्ट with a mastery of some 1,000 instruments and hectic
इंटरनेशनल शेड्यूल। उसने एक ही नहीं, xylophone ही नहीं, ऐसे हजारों म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट थे उसमें उसने उसका स्किल को डेवलप किया और उसकी मास्टरी हासिल की। इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब जो 11th ईयर तक को उसको सुनाई देता था और तब तक उसने जो उसकी जो भाषा थी, खुद की भाषा, लैंग्वेज, मदर टंग जो थी, वो फ्लॉलेस स्पीक करती थी। स्कॉटिश लैंग्वेज, स्कॉटिश लिटरेचर भी उसने एडॉप्ट किया था, लेकिन उसके बाद उसने फ्रेंच एंड जापानीज लैंग्वेज भी सीखी थी, उसका बेसिक मास्टरी की थी। As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By learning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. उसने कहा कि संगीत ये मेरे बालों से बजता है, मेरे हाथों से बजता है, मेरे फिंगर से बजता है, मेरे एवरी पार्ट ऑफ बॉडी से बजता है। मेरे हाथ से नहीं, मेरे फिंगरप्रिंट से नहीं, मेरे पूरे बॉडी से बजता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। उसने क्या किया कि वुडन प्लेटफॉर्म था, वो अपने शूज़ निकाले और वो जो लकड़ियाँ थी उसके ऊपर भी उसने वाइब्रेशंस स्टार्ट किया। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इन 1991 शी वॉज presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, said Master Percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. तो 1991 में उसको अवार्ड मिला, फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट, जो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड रहता है, जो 1991 में उसको मिला। और वहाँ के जो जज थे जेम्स ब्लेड्स, उसने कहा कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने कहा कि भगवान ने उसके पास से हियरिंग कैपेसिटी यानी सुनने की जो ताकत है वो छीन ली है, लेकिन उसको ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है कि हमसे भी ज़्यादा वो अच्छा सुन सकती है, म्यूजिक को सुन सकती है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। आई हैव जस्ट go to work often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. तो कैसा है कि उसने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन अभी चैरिटी भी स्टार्ट की। वो जो प्रिजनर्स जो है, जेल में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए, और हॉस्पिटल में जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए फ्री में काम करती है। उसके पास जो भी पैसे आते हैं वो फंड उसने क्या किया है कि जो भी दुनिया में जो डेफ चिल्ड्रन है उनको फंड से क्या करती है, वो चैरिटी करती है, उनको डोनेट करती है। शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। यानी डेफ जो बहरा आदमी होता है म्यूजिक का मास्टर हो सकता है, ये उसने दुनिया के सामने रखा है। ये हमारे लिए सबसे इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम लोग फिजिकली फिट होने के बावजूद मेंटली हम क्या है, डिसेबल्ड है। हम शरीर से क्या है, फिजिकली हम फिट है, शरीर से अच्छे है, लेकिन मन से हम क्या है, विकलांग है। लेकिन एवलिन ने साबित कर दिया कि कोई विकलांगता, कोई भी डिसेबिलिटी आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती है। तो ये हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रेरित करता है। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड more than most people twice her age. She had brought percussion to the front of the orchestra
and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. उसने दुनिया के सामने ऐसा रखा है एग्जाम्पल हैंडीकैप लोगों के लिए कि अगर वो कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. उसके साथ साथ उसने दुनिया के सभी लोगों को क्या किया है, मनोरंजन के साथ साथ डोनेशन भी दिया है, इंस्पिरेशन भी किया है, और वो एक ही अच्छी और एक बहुत ही बड़ी एक म्यूजिशियन बनकर दुनिया में रहती है. इसके लिए आप इस टेक्स्ट को बार बार पढ़ें, आपको उससे इंस्पिरेशन मिलेगा और हमारे जीवन में जो दुख है उससे हम क्या करेंगे, दूर जाएंगे, और हमारा जो ड्रीम हम बनाते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं. तो ये लेसन जो है 9th स्टैंडर्ड के CBSE के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में है. बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही अच्छा लेसन है. आप लोगों को उसको पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.